Hello students and welcome to today's biology class. So in the previous class we were discussing about kingdom fungi, that is the third kingdom of animal kingdom of the five kingdom classification, and in that we have discussed some of the general characteristics of kingdom fungi. तो हम लोगों ने थोड़ा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक उसका डिस्कस कर लिया था. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगी. ओके, तो यहाँ आपके स्क्रीन पे द चार ग्रुप्स हैं, द फोर डिविजन्स ऑफ किंगडम फंगी, which is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. ना ये जो फाइकोमाइसिटिस होते हैं इनको एल्गल फंगी भी बोला जाता है या फिर लोअर फंगी बोला जाता है, as you can see on your screens. And the second one, which is called as Ascomycetes, are the sac fungi. क्योंकि ये sac like होते हैं, bag like structure होता है ascus इनमें, so that is the reason they are called as sac fungi. The third one is Basidiomycetes or club fungi. Club fungi मतलब they have a club like structure. Okay, so from that club it is called as club fungi. And the last one is called as Deuteromycetes, which is fungi imperfecti. Imperfecti मतलब imperfect fungus. वो लोग perfect fungus नहीं है. ये इम्परफेक्टली बोलने का मेन रीजन है कि ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका कुछ स्पेसिफिक फंगी क्लासिफिकेशन नहीं है. समटाइम्स सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन बी शिफ्टेड टू द अदर डिविजन्स और द अदर ग्रुप्स, तो इसीलिए उसको बोला जाता है ड्यूटेरोमाइसिटिस. सो दीज आर द फोर डिविजन्स: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. In today's class, we'll discuss about the first two, that is the Phycomycetes and the Ascomycetes. So let us move on to the first one, which is called as the Phycomycetes. The word Phyco represents algae. ठीक है, यहाँ पे देखिए Phycomycetes दो वर्ड से बना हुआ है. Phyco मतलब algae, myco refers to the fungus. So you can say they are a kind of algal fungi. उनको algal fungi भी बोल के रेफर किया जाता है क्योंकि उनमें कुछ algae like properties होते हैं. Okay, so let us see the properties of this specific group. The first property is they are commonly called as algal fungi. Just now I told you कि ये जो फंगस होते हैं इनमें कुछ एल्गी जैसे प्रॉपर्टी होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है Phycomycetes और the algal fungi. They are found in aquatic habitat, damp and moist soil and decaying wood. तो ये तो हम लोग जनरल प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किए थे फंगस के बारे में कि ये लोग ज्यादातर वाटर रिलेटेड एरियाज में रहते हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट के हो सकते हैं बिकॉज एल्गल प्रॉपर्टीज हैं उनका. तो secondly enough they are also found in the damp and moist soil where there is some amount of moisture, some amount of water, and on decaying woods because majorly most of the fungus are saprophytic, तो वो लोग dead and decaying matter से अपना food लेते हैं, so that is why they will also be found around the decaying woods. Besides that, they are also obligate parasites. उनमें से कुछ होते हैं जो obligate parasites होते हैं. In one way you can say ये लोग opportunistic parasite होते हैं, मतलब उनको जब चांस मिले, जब उनको एक मौका मिले तो वो लोग parasitic behavior exhibit करते हैं, तो इसीलिए उनको बोला जाता है the obligate parasites. The next property, the mycelium is septate and conocytic. ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस. सेप्टेट मतलब ब्रांच्ड, ब्रांचिंग होता है. एसेप्टेट मींस विदाउट ब्रांचेस. ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल टर्म होता है तो इसके सामने अगर ए वर्ड आ जाता है, ए लेटर आ जाता है, तो दैट मींस विदाउट. सेक्सुअल, एसेक्सुअल. सेप्टेट, एसेप्टेट. सेप्टा मींस डिविजन्स और पार्टीशंस. एसेप्टेट मींस नो ब्रांचिंग, नो डिविजन. Besides that, conocytic, तो यहाँ पे आपका एक पिक्चर है of that specific fungus. So here you can see this fungus is having a cell wall, और ये जो conocytic hyphae होता है, hyphae means it is the stem like structure of the fungus. So here you will find कि there is multi-nucleated structure, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियस हैं उनमें कोई डिविजन्स नहीं है. मतलब you will find कि जनरली कोई भी सेल आप देखिए तो इस तरह के आपको डिविजन्स मिल जाएंगे which are ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रेजेंस से ये छोटे छोटे डिविजन्स में या फिर छोटे छोटे यूनिट्स में बढ़ जाते हैं, तो उसको सेप्टेट बोला जाता है. लेकिन इनमें वैसा कोई डिवीजन नहीं है, देयर इज नो सच डिवीजन. तो ये सारे डिविजन्स नहीं होते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है एसेप्टेट. विदाउट एनी सच डिविजन्स और विदाउट एनी सच ब्रांचिंग्स, दे आर ओपन. उनका सारा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो ओपन रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज aseptate and conocytic.
Now the next property of this organisms is asexual reproduction is carried out by motile zoospore and non-motile aplanospore. तो दो टाइप के स्पोर से इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है मोटाइल, तो जो जू स्पोर होता है, और दूसरा जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, एप्लानोस्पोर। Now here there is a diagram representing the asexual reproduction through zoospore. और ये जो zoospore formation होता है that takes place by mitosis. So I hope all of you are acquainted with this kind of cell division, mitosis. इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं, मोटाइल होते हैं, तो इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है एज टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स का जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, आपका नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर सेल डिवीजन उसका भी उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। और ये जो स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं उनको बोला जाता है जूस्पोर। द वर्ड जू रेफर्स टू एनिमल्स, और यहाँ पे एक्चुअली एनिमल वर्ड यूज करने का मेन रीजन है कि दे आर मोटाइल। एनिमल्स लोकोमोट कर सकते हैं, प्लांट्स लोकोमोट नहीं कर सकते हैं। तो एनिमल्स आर मोटाइल, इसीलिए इसको बोला जाता है जूस्पोर, बिकॉज दे एग्जिबिट सम एनिमल लाइक प्रॉपर्टी। और दूसरा होता है द नॉन मोटाइल विच इज एप्लानोस्पोर। नाउ दिस वन इज नॉन मोटाइल, ये खुद मूव नहीं कर सकता, तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है इसको बोला जाता है एप्लानोस्पोर। दे आर अटैच्ड टू द हाइफी। ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसको हाइफी बोला जाता है, जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। So it is attached to the hyphae and this is called as aplanospore, which is normally non-motile. ये non-motile होता है, ठीक है। Now let's move to the next point. The last point is कुछ common examples दिए हुए हैं इसके, जैसे आपका हो गया म्यूकर। म्यूकर is a common example. Rhizopus, इसको ब्रेड मोल्ड्स भी बोलते हैं आप लोग। नॉर्मली अगर कोई ब्रेड आप लोग बाहर छोड़ देंगे और 1 or 2 days यू फाइंड कि उसमें फंगल ग्रोथ हो जाता है, तो वो फंगस होता है राइजोपस। और एक होता है एल्बुगो, वो पैरासाइटिक फंगस होता है जो आपको मस्टर्ड प्लांट में दिखेगा। यू विल फाइंड दिस ऑन द मस्टर्ड प्लांट्स। दिस इज अ पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ फंगी Phycomycetes, which is called as Albugo. So these are the properties or characteristics of Phycomycetes. Now the next group or the next division is Ascomycetes. Now the word Ascomycetes is derived from two words again. Ascus is a cup like structure जो इनके रिप्रोडक्शन मोड में दिखाई देता है। तो उस कप लाइक स्ट्रक्चर एस्कस से एस्को आया है, और माइको तो हम लोग जानते हैं फंगी होता है, ठीक है। सो दिस इज यू कैन से सेक लाइक फंगी हैविंग कप लाइक स्ट्रक्चर्स, एस्कस। इनको सेक फंगी भी बोला जाता है बिकॉज इनमें सेक या फिर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है which we have named just now as ascus, तो उसीलिए उनका ये नाम पड़ गया Ascomycetes. Now the next point regarding this specific group is they can be unicellular like yeast, which is Saccharomyces cerevisiae, and it can be multicellular, बहुत rarely दिखाई देता है, multicellular form भी होता है Ascomycetes का। An example is Penicillium marnefi. Now Penicillium marnefi is one of the organisms belonging to the genus Penicillium. Now remember all the organisms from Penicillium are not multicellular, लेकिन yes, ये जो स्पीसीज होता है पेनिसिलियम मर्नेफी, उसका एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, राइट। बिसाइड्स दैट द कॉमन स्पीसीज इज पेनिसिलियम नोटाटम, जिससे पेनिसिलिन प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। पेनिसिलिन, दिस आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ। पेनिसिलिन जो होता है, दिस इज एन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन फैक्ट which was discovered by Alexander Fleming, and that is a universal antibiotic. Penicillium notatum is the scientific name of the specific organism from which this antibiotic is derived. And the unicellular form, the most common unicellular form is yeast, Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae इसका पूरा नाम होता है, genus name Saccharomyces cerevisiae the species name, और इसको हम लोग yeast बोलते हैं। Now this yeast is very commonly used in our food products. To make bread, to make bakery items. In fact, Saccharomyces cerevisiae is used for production of beverages like wine and all. तो ये जो yeast होता है हमारे लिए बहुत beneficial होता है food production के लिए. So that is unicellular, whereas Penicillium marnefi is multicellular. Now the next point, this is an photograph of the yeast unicellular. ये उसका microscopic diagram है, और ये मल्टीसेल्यूलर है पेनिसिलियम मर्नेफी। दिस इज एन इमेज फ्रॉम अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से लिया गया एक इमेज है ये।
तो उसमें देख सकते हैं कि आपको मल्टी सेलुलर है, मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, whereas in yeast you'll find they are unicellular। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, these are actually birds, ठीक है, दिस वन, दिस येलो कलर डॉट्स जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये होते हैं बर्ड्स, बिकॉज बर्डिंग कर सकते हैं these organisms। That is an asexual mode of reproduction। Their mode of nutrition varies from saprophytic to decomposers to parasitic to coprophytic। तो ये तो कॉमन मोड है सेप्रोफाइटिक, बिकॉज फंगस है तो सेप्रोफाइट होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड लेता है। डिकम्पोजर्स भी होते हैं, वो लोग हायर ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। पैरासाइटिक भी होते हैं, दे कैन लिव इन अदर होस्ट ऑर्गेनिजम्स बॉडी एंड कॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस समटाइम्स। एंड कॉप्रोफाइटिक, ये एक नया वर्ड आ गया अभी हमारे पास, कॉप्रोफाइटिक। Coprophytic means which grow on dung or which feed on waste material like dung। तो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसको हम लोग कॉप्रोफाइटिक, कॉप्रोजोइक बोलते हैं। तो कॉप्रोफाइटिक वर्ड लिटरली रेफर्स टू दोज ऑर्गेनिजम्स which consume fecal matter or which consume the waste material of any other organism। यहाँ पे काउ डंग इनका वेस्ट मटेरियल है जो फूड की तरह वो लोग यूज करते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉप्रोफाइटिक। तो यूल फाइंड कि वो लोग वैसे एरियाज में ग्रो करेंगे। द नेक्स्ट वन, माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ना ये माइसिलियम होता है, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ द फंगी, फंगी का जो हाइफी होता है उसका जो नेटवर्क होता है उसको माइसिलियम बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस स्पेसिफिक डायग्राम, देयर इज अ ब्रांचिंग, यहाँ पे ब्रांचिंग है और एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो मल्टीसेलुलर फंगी है इसके ब्रांचिंग्स होते हैं और एक नेटवर्क लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइसेलियम। नाउ माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इसके पहले वाले में हम लोग देखे थे इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटिस वो अनब्रांच्ड था, मतलब न्यूक्लियस का जो सेपरेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल जो होना चाहिए वो नहीं है, सारा न्यूक्लियस फ्रीली फ्लोटिंग होता है ऑन द यू कैन से साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा क्लोज अप व्यू ले लें, वी आर नॉट हैविंग दैट क्लोज अप व्यू हियर, इफ यू क्लोज इन यू विल फाइंड कि इसमें छोटे छोटे डिविजन्स होंगे, ओके, जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, ठीक है। Now the next property of these organisms which is ascomycetes, it is during sexual reproduction thousands of asci, singular ascus, fill the fruiting body called ascocar। तो इनका जो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है एस्कोकार। एस्कोकार के अंदर कुछ फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं जिसको एस्कस बोला जाता है सिंगुलर में, और एस्की और एस्काई बोल सकते हो आप लोग, दैट इज द प्लूरल फॉर्म। और उसी से ही इस स्पेसिफिक ग्रुप का नाम आया है एस्कोमाइसेटिस। ओके, लेट अस सी हाउ द स्ट्रक्चर एक्चुअली लुक्स लाइक। नाउ दिस इज द sac fungi and this is the specific structure which is called as the एस्कस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर हियर, एंड उसी का ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है। नाउ ये जो कप है इसको एस्कस बोला जाता है और इसके अंदर से एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि फंगस इनका जो रिप्रोडक्शन मोड होता है वो जनरली स्पोर फॉर्मेशन से ही होता है। तो इनमें से एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर निकलता है जिसको एस्कोस्पोर बोला जाता है। किससे निकलता है? फ्रॉम दी एस्कोकार। तो ये कप जो है इसको एस्कोकार बोलते हैं हम लोग, और उसमें से एस्कोस्पोर निकलता है एंड द डिवीजन नेम इज एस्कोमाइसिटिस। So these are the first two divisions of kingdom fungi. In the next class, we'll move on to the next two, that is Basidiomycetes and the Deuteromycetes. Thank you.